Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the book of Acts. पाकिस्तान के लोगों को खुशामदीद कहते हैं। स्टीव वॉकर और मैरी आपके अमाल किताब का मुतालिया लाएं। Remember, the book of Acts was written by Theophilus, by Luke to Theophilus, so that he might know the certainty of the things that he had been taught. याद रखें कि अमाल की किताब लुका तबीब ने लिखी है उन लोगों के लिए जो ईमानदार हैं, ताकि वो हकीकी मसीहा की पहचान कर सकें। And what was that certainty? That Jesus is the legitimate Messiah and he chose legitimate apostles. और ये किताब हमें बताती है कि मसीह यीशु हकीकी मसीहा है, जिन्होंने 12 शागिर्दों को हकीकी रसूलों को चुन लिया था। And as we have seen so far, we have seen that Jesus told his disciples to go to Jerusalem, wait for the Holy Spirit, and the Holy Spirit would begin the church. और जिस रोज खुदा के पास रूह का नज़ूल था, उस वक्त से शिक्षा का आगाज हुआ। And they did, and the Holy Spirit began in Jerusalem, and we have seen that it has started to spread throughout Judea, Samaria, and the rest of the world. और हम देखते हैं कि रसूलों ने जो पाक रूह है वो यरूशलेम में जो है उसको रिसीव किया। However, और यरूशलेम में जब उन्होंने उसको यरूशलेम, यहूदा, सामरिया और दुनिया की तहां खुदा के कलाम की मनादी कर सके। However, along the way, there has been much opposition to the message of Christ. तो भी हम देखते हैं कि मसीह यीशु के कलाम की बहुत ज्यादा मुखालफत की गई। Message of Christ has continued to grow both geographically and number of people. लेकिन याद रखिए खुदा का कलाम बढ़ता गया और फैलता गया, ना सिर्फ इलाकाई तौर पर बल्कि लोगों की तादाद के हवाले से। And we have seen in our last booklet that the baton has been passed from Peter to Paul. और अब जो है हम आपने किताबचे के अंदर है और हम देखते हैं कि खुदा का काम जो है वो पतरस से होता हुआ किस तरह साउल के जरिए से अब खुदा का कलाम जो है वो पूरा हो रहा है। And now we are moving into booklet number 4, where Saul's ministry is born. और अभी हम चौथे किताबचे के अंदर देखते हैं कि जो साउल है उसकी खिदमत का आगाज हुआ। Today we will look at the beginning of his first Mediterranean journey, that is the northeast Mediterranean. और आज जो है हम साउथ मत के जो पहले वाकयात हैं जो कि मशरिकी तरफ से शुरू हुए हैं उनके मुताबिक जानेंगे। And that this is going to be a great success for the word of God to spread outside of Israel through the Roman Empire. और हम देखते हैं कि जब साउल ने जो खिदमत का आगाज किया है तो वो बहुत ज्यादा खिदमत करता हुआ इलाकों के अंदर वो जाता रहा है। Now, I have a couple of maps here that show how far Paul is going to move from Jerusalem, the word of God. अभी यहाँ पर आप कुछ जो है नक्शे को देखेंगे और इन नक्शों के जरिए से आप जान पाएंगे कि किस तरह से पौलुस रसूल अपनी खिदमत को यरूशलेम से आगाज करता हुआ वो करता है। Now, Jerusalem to Joppa, remember, Joppa is where Peter was as he went up to Caesarea to meet Cornelius. याद रखें कि यरूशलेम से जो याफा का सफर है वो 40 मील है और ये जो सफर है वो थोड़ा लंबा है। Joppa is a short way away, like 40 miles. It's like that as far as Jesus went to Samaria with the woman on the well. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है सामरिया में जब गए थे उस औरत को जब मिले जो वो कुएं पे थी,
तो याफा जो है उससे जरा कदरे नजदीक है। Jerusalem to the Sea of Galilee was 70 miles. Remember, Jesus would go from the Sea of Galilee down to Jerusalem for the three Passover or festivals, और Passover, Pentecost, and जो है Tabernacle. यरूशलेम से जो गलील का जो सफर है वो 70 मील है। और यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज भी जो है वो यीशु मसीह जो थे गलीली थे वहां से किया था। और यीशु मसीह इधर जो फंसा है 3 दफा इस रास्ते से होते हुए गुजरे थे। Jerusalem to Caesarea, that's where Cornelius received the Holy Spirit. That is 75 miles. और फिर यरूशलेम से जो है कैसरिया का जो इलाका है, कैसरिया वो इलाका जहाँ कर्नेलियस था। कैसरिया का जो इलाका है वो 75 मील का है। Jerusalem to Damascus, that's where Paul was going when he met Jesus on the road to Damascus, is 150 miles. और यरूशलेम से जो दमिश्क का सफर है वो 150 मील का है। और ये वही दमिश्क है जिस राह में यीशु मसीह साउल को मिले थे। Jerusalem to Antioch, Syria is 300 miles. So now the word is spreading significantly outside of Israel. और फिर हम देखते हैं यरूशलेम से जो अंताकिया का सफर है वो 300 मील का है। और अब खुदा जो है वो किस कदर तेजी के साथ अपने काम को पार तकमील तक दे रहा है कि खुदा का कलाम अंताकिया तक पहुंच चुका है। And Jerusalem to Tarsus, which is where Paul was from, is 590 miles. और यरूशलेम से जो आप देखते हैं कि तरासिस का जो इलाका है वो 590 मील का है। और यही वही तरासिस है जहां पर दर हकीकत साउल की रहाइश थी या उसका इलाका है। Now, this first missionary journey that we're going to see in Acts chapter 13 and 14 began in April of AD 48. और आज जो है हम जो साउल है उसकी खिदमत के जो इब्तिदाई आगाज है जो कि जो कि सन 48 अप्रैल से लेके सितंबर 49 में है। आज हम उनके मुतालिक सीखेंगे और ये कलाम अक़दस में हमारी की किताब 13वां और 14वां बाब है। Remember that Jesus died in April of AD 33, so this is 15 years after the death of Jesus. याद रखिए कि मसीह यीशु जो है वो 1 अप्रैल सन 31 के अंदर सलीब पर कुर्बान हुए थे। और तकरीबन हम देखते हैं कि 14-15 साल के बाद जो है साउल की खिदमत का आगाज हुआ है। Now, if you look at the map that I have on the right, you will see that there is a blue line with arrows. That is Paul going out, and then there's a red line when Paul returns. ओके, अगर आप इस नक्शे को देखें तो ये जो आपको नीले रंग की लाइन नजर आ रही है ये सारी वो लाइन है जहां से पालूस ने अपनी खिदमत का आगाज किया है। लेकिन इसके साथ आपको एक गहरी लाइन नजर आ रही होगी रेड कलर की, लाल रंग की। इसका मतलब है यहाँ से आगाज करके ये खिदमत यहाँ तक पहुंची और फिर यहाँ से वो वापस इस जगह पर आया है। Now, you may ask, how is Paul going to go from Antioch to Antioch? The answer is there are two Antiochs. अगर आप अपने आप से सवाल करें तो ये सवाल की पत्रस जो है उसका अंताकिया 1 में और 2 में, कि क्या वो 1 में खिदमत करता रहा है या 2 में। जैसे हम कहते हैं मशरकी हिस्सा 1 और मशरकी हिस्सा 2, इसी तरह हम अपने आप से सवाल करते हैं कि साउल ने अंताकिया के एक हिस्से में खिदमत की या दूसरे में। तो मैं आपको कहूंगा वो 1 और 2 दोनों हिस्सों में खिदमत करता रहा। I will refer to Antioch S as the Antioch that is in Syria, which is down in the right-hand corner right here. अगर हम पूछें अपने आप से कि अंताकिया क्या है तो आज का मौजूदा हम देखते हैं जो सीरिया का इलाका है उसे अंताकिया कहते थे। But notice there's another Antioch up in this green and red area called Antioch in Pisidia. This is in actually Galatia. अगर यहाँ पे जो लाल रंग की लाइन पे आप देखें यहाँ पे लिखा है अंताकिया सीरिया, तो ये वो इलाका है जो कि दूसरा हम अंताकिया कहते हैं वो इलाका है।
So Antioch S will be in Antioch, Syria, where the church is now, and he will go up and evangelize in Antioch Pisidia, which is in Galatia. याद रखें कि सीरिया के अंदर अंताकिया या सीरिया के अंदर या ग्लेशियस के अंदर अंताकिया दो में पौलुस रसूल खिदमत करता रहा और इन दोनों इलाकों के अंदर अब मसीही लोग हैं। So Saul will leave in April of AD 48, and he will end up in Cyprus in June of 48 on this island down here. और हम देखते हैं कि जो साउल है उसने सन जो है 31 में जो है इस सन जो है वो 48 के अंदर इस इलाके को छोड़ा है। Then in July of 48, he'll leave the island of Cyprus and go to Pamphylia, which is the tan area there. और फिर वो जुलाई के अंदर इस इलाके को छोड़ता है और दूसरे इलाके में मुंतकिल होता है। Then in July through September, he'll go from Pamphylia up to Antioch in Pisidia, which is in Galatia. और वो जो सीरिया जो है उसका जो ग्लेशिया दूसरा इलाका है उसको जो है वो जुलाई के अंदर और जुलाई और सितंबर के अंदर छोड़ता है और दूसरे इलाके में मुंतकिल होता है। From there, he will go through 3 cities, Iconium, Lystra, and Derbe. और जब इस इलाके के अंदर वो जाता है वो 3 शहरों के अंदर खिदमत करता है जिनके नाम जो है हम अभी इसमें से पढ़ेंगे। In every city that he goes to, he will evangelize the message of Christ in the kingdom of God. और जिस भी शहर के अंदर वो जाता था वो मनादी करता था और उसकी बुनियादी क्या थी कि यीशु मसीह ही हकीकी बादशाह है और उसकी बादशाहत जरूर आए। Then notice the red, he will return through each of the cities and he will disciple the towns that he evangelized. और याद रखिए कि जब वो इन इलाकों से खिदमत करता वो वापस आ रहा था तो इन इलाकों में बहुत सारे ईमानदार हो चुके थे। The only place he won't return to is Cyprus, the island of Cyprus. और हम देखते हैं साइप्रस का एक इलाका है वहां पर सिर्फ जो है खिदमत नहीं हुई सिर्फ बाकी इलाकों में जो है खिदमत हुई है। And then on September 1st of AD 49, he will return to Antioch, Syria, where he began his first missionary journey. और सितंबर 1 सितंबर सन 49 के अंदर वो इसी अंताकिया सीरिया के अंदर वापस आया है। So this first missionary journey will be for 15 months. और ये सारी खिदमती जो काम था तकरीबन ये 15 महीने का था। And then when he returns to Antioch, he will write Galatians in the fall of AD 49. और जब वो वापस जो है ग्लेशियस के अंदर आया है तो हम देखते हैं कि वो सन 49 के अंदर आया है। Okay, so in our first missionary journey, we're going to see 3 parts to it, 3 episodes to this story. अब पहले जो हम उसकी खिदमत का जो साल है उसके अंदर 3 हिस्से हैं। The Holy Spirit will send Saul and Barnabas to Cyprus. और खुदा के पाक रूह ने जो है साउल को और बरनबास को जो है किसी खास मकसद के लिए चुन लिया है। Remember, we have seen all through the book of Acts that everything that is done is powered by the Holy Spirit and prayer. याद रखिए कि हमारी की किताबें हमने सीखा कि जो कुछ भी वो खिदमत को कर रही थी या जो कुछ भी हो रहा था वो खुदा के पाक रूह के वसीले से हो रहा था और खुदावन उसे करवा रहा था। The second episode will be Paul in Antioch, Pisidia. और दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि पौलुस रसूल का अंताकिया में जाना। Okay, so one of the things we're going to see in this book is that the Jews will always be spoken to first in the synagogue, and then Paul will go to the Gentiles. और हम देखेंगे कि पहले हिस्से के अंदर पौलुस रसूल का जो है वो हैकल के अंदर जो है पैगाम देना और यहूदियों का उसे कबूल ना करना और फिर पौलुस रसूल का गैर अक़वाम के पास जाना। We will see in 13:1 through 3 that the Holy Spirit in the Antioch church will tell
the church to send Barnabas and Saul from Antioch up through Galatia. और 13वें बाब की पहली 3 आयतें हमें बताती है कि खुदा ने उस पर पौलुस के वसीला से जाहिर किया कि बरनबास को और साउल को उस इलाके में भेजा जाए जिसके लिए उन्हें अलग किया गया है। Then in 13:4 through 12, we'll see he goes to the Jews first and then to the Gentiles. और फिर चौथी आयत से लेकर 12वीं आयत तक हम देखेंगे कि पहले वो यहूदियों के पास गए हैं और बाद में वो गैर अक़वाम के पास मनादी करते गए। Then he'll go to Antioch Pisidia and he'll go to the Jews first, then to the Gentiles. और फिर जब अंताकिया यानी सीरिया के अंदर गए तो वहां पर भी वो पहले यहूदियों में मनादी करते हैं और बाद में गैर यहूदियों में। And then in the 3 other cities that I talked about, Iconium, Lystra, and Derbe, he'll go to the Jews first, then to the Gentiles. और उसके बाद वो 3 मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं जिनमें अकनीमिया का इलाका है और बाकी 2 इलाके हैं और वहां जाकर भी वो पहले यहूदियों में मनादी करते हैं और बाद में गैर अक़वाम के अंदर। Okay, so here's what we're going to have happen. The area that is evangelized in Acts 13 and 14 is called Galatia. This is where he wrote the book of Galatians 2, is these people. It's in the green. और अमाल का 13वां और 14वां बाब हमें बताता है कि जो गलेशिया का इलाका है उनमें जब मनादी की तो हम लुका को भी देखते हैं कि जब वो इस किताब को लिख रहा था तो उसने खास इस बात पर तवज्जो दी। Now that we have the background, let's turn to Acts chapter 12 and read verses 12:25 through 13:3, please. आए मेरे साथ देखिएगा अमाल की किताब, क्योंकि अब हमारे पास बैकग्राउंड मौजूद है तो अमाल की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 25वीं आयत से हम देखेंगे। Acts chapter 12 verse 25 through 13:3. और अमाल उसका 12वां बाब उसकी 25 आयत से शुरू करके अमाल 13वें बाब की 30वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और बरनबास और साउल अपनी खिदमत पूरी कर कर और यूहन्ना को जो मरकज कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम से वापस आए। अंताकिया में उस कलीसिया के मुतल्लिक जो वहां थी कई नबी और मुअल्लम थे, यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है और लूकस क्रीनी और मनाहाम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदिस के साथ पला था। और साउल जब वो खुदा की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूह कुदस ने कहा मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ कर कर और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। आमीन। Okay, notice here that Barnabas and Saul returned from Jerusalem after fulfilling their mission of delivering material wealth to the poor in Jerusalem. याद रखें कि आप यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो साउल है और बरनबास है उस तमाम चीजों को पूरा कर कर वापस यरूशलेम से आ चुके हैं। और किस चीजों को, अगर पिछले पैसेज आपको याद हो तो उन्हें कुछ रुपए पैसे दिए गए थे ताकि जो वहां के गरीब यहूदी हैं उन्हें उनकी मदद की जा सके। अब उन्होंने वो काम मुकम्मल कर लिया और अब वो वापस आ चुके हैं। Let's go back to Acts chapter 11 and read verses 27 through 30, please. आए मेरे साथ वापस जाएंगे अमाल की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 27 आयत और 30 आयत तक हम पढ़ेंगे। उन्हीं दिनों में चंद नबी यरूशलेम से अंताकिया में आए। उनमें से एक ने जिसका नाम अब्बास था खड़े होकर रूह की हदायत से जाहिर किया कि तमाम दुनिया में बड़ा काल पड़ेगा। और ये कलारूस के अहद में वाक़या हुआ। बस शागिर्दों ने तजवीज़ की कि अपने अपने मकदूर के मुताबिक यहूदा में रहने वाले भाइयों की खिदमत के लिए कुछ भेजें। चुनाचा उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और साउल के हाथ बुजुर्गों के पास भेजे। आमीन। Notice here that Antioch, Syria, they sent material wealth back to Jerusalem because there was a famine going on, and the Christians from where the word of God had come were in desperate need of food. और हम देखते हैं कि जब वो अंताकिया के अंदर थे
तो वहां पर खुदा के एक बंदे पर खुदा का पाक नाज़िल हुआ कि एक बड़ा क्या पड़ेगा, काल पड़ेगा। और चूंकि वो जानते थे कि जो यहूदा के इलाका में मसीही है, उनकी जरूरत है खुराक, और वो इतने अमीर नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, हदिया इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया, और बरनबास और साउल के हाथों उन्हें भिजवाया था। अब साउल और बरनबास उस मकसद को पूरा करके यरूशलेम से वापस आ चुके हैं। So, because people were dying, they sent Saul and Barnabas to carry the money because they were trustworthy to get it there so that people would be able to live. और क्योंकि काल की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे थे, तो उन ईमानदारों ने कुछ पैसे जो है वो बरनबास को और साउल को दिए थे। क्यों उन्हें दिए थे? क्योंकि इन्हें मालूम था ये ईमानदार है, और ये ईमान रखते हुए उन ईमानदारों को दे सकेंगे ताकि उनके लिए खुराक का इंतजाम किया जा सके। Now they have returned back from Jerusalem, and they have brought John Mark with them also, and they are back in Antioch, Syria. और हम देखते हैं कि जब वो यरूशलेम के अंदर गए और उन्होंने अपने सारे काम को खत्म कर लिया, तो अब वो वहां से वापस आ गए हैं। लेकिन जब वो वापस आए हैं तो एक और शख्स उनके साथ मिल गया, और वो कौन है? यूहन्ना, जिसे मरकस भी कहते हैं। Being faithful in delivering the material wealth of Antioch, Syria to Jerusalem, Saul and Barnabas would now be called to deliver the spiritual wealth of the gospel of Jesus through Galatia. अब हम देखते हैं कि अंताकिया से जब साउल और बरनबास आए हैं, तो वो जिस्मानी जरूरत की चीजों को उन ईमानदारों के पास लाए। अब वहां से वापस अंताकिया में जाने के लिए अब जरूरत थी कि वो उन ईमानदारों के लिए रूहानी तौर पे कुछ कर सके। पहले वो जिस्मानी तौर पर रुपए पैसे को खुराक को लाए हैं, अब अंताकिया में जा रहे हैं वापस, ताकि उनको रूहानी गजा से सेव कर सके। Notice that God divinely calls people to grow and multiply his church. और अब खुदा जो है अपने लोगों को जो है वापस बुलाता है, ताकि वो उनके वसीला से बढ़े और खुदा के लोग जो है वो फैलते जाए। Notice that ministry and fasting preceded the divine call. और खिदमत के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है? दुआ करना और रोजा रखना। क्योंकि जब And हम the दुआ ho- और रोजा करते हैं, तो हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। and the Holy Spirit is always the divine agent of God's call. याद रखें कि खुदा का पाक रूह जो है वो हमारा मददगार और वकील है, जो खुदा के पैगाम को हम तक पहुंचाता है। Now they have sent them out. Paul and Barnabas are going to go to Cyprus, the island that we looked at earlier. और अब जो है जब वो अंताकिया के अंदर है, तो खुदा का पाक रूह उन्हें बता रहा है कि वो इन्हीं दो शख्सों को, यानी साउल को और बरनबास को जो है वो दूसरी जगह पर भेजे, जिस मकसद के लिए खुदा ने उन्हें बुलाया है। Let's read chapter 13, verses 4 through 12, please. आयत 14वीं आयत से लेकर चौथी आयत से लेकर 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, बस वो रूह कुदस के भेजे हुए सलूकी को गए और वहां से जहाज पर कुप्रियस को चले, और सलमिस में पहुंचकर यहूदियों के इबादतखाना में खुदा का कलाम सुनाने लगे। होते हुए वापस तक पहुंचे, वहां उन्हें एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी पर यस्सु नाम मिला। वो सरकिस फलूस सूबेदार के साथ था, जो साहिब तमीज आदमी था। उसने बरनबास और साउल को बुलाकर खुदा का कलाम सुनाना चाहा, मगर अलमास जादूगर ने, कि यही उसके नाम का तर्जमा है, उसकी मुखालफत की और सूबेदार को ईमान लाने से रोकना चाहा। और साउल ने जिसका नाम पलूस भी है, रूह कुदस से भरकर उस पर गौर से नजर की और कहा कि ए अब्लीस के फर्जंद, तू जो तमाम मकारी और शरारत से भरा हुआ और हर तरह की नेकी का दुश्मन है, क्या खुदावन की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा? अब देख, तुझ पर खुदावन का गजब है, और तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को ना देखेगा। उसी दम कू और अंधेरा उस पर छा गया, और वो ढूंढता फिरा कि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। तब सूबेदार ये माजरा देखकर और खुदावन की तालीम से हैरान होकर ईमान लाया।
आमीन। Okay, so what we see here is Saul and Barnabas preached God's word in Salamis at the Judean synagogue first. हम देखते हैं कि पहली चीज क्या है कि जो पलूस है और जो साउल है वो सलमून में जब पहले पहुंचे हैं तो उन्होंने जाकर इबादत खाना में पहले तालीम दी है। Then they would successfully evangelize to the proconsul Sergius Paulus, who was a Gentile. और उसके बाद जब वो कामयाब हुए हैं तो फिर वो गैर अक़वाम में भी तालीम देने लगे हैं। Resistance came from Bar Jesus, who's also named Elymas, a sorcerer, a false prophet. और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक शख्स है जिसका नाम जो है वो बर यसु है या फिर इसे अलमास भी कहा जाता है। इसके मुतालिक लिखा है कि वो झूठा नबी और जो जादूगर है। Okay, so let's take a closer look at exactly what is happening here. आए जरा हम ज्यादा तवज्जो से देखें कि उस वक्त हुआ क्या। When they arrive in Salamis, they preach the word of God first to the Jews in the synagogue. They go to the Jews first every time. और पहले जब वो सलामून इलाका के अंदर पहुंचे हैं तो उन्होंने पहले यहूदियों को कलाम सुनाया है। Notice that John Mark is their assistant. So it's not just Saul and Barnabas, it's also John Mark. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूना है और जिसको मरकस भी कहते हैं वो उनका खिदमत गुजार है जो कि बरनबास और साउल के साथ है। Now, when they get there and they're preaching in the synagogue to the Jews, there's a man who's a sorcerer. His name is Bar Jesus. और जब वो इबादत खाना में यहूदियों को तालीम दे रहे थे वहां पर एक शख्स है जिसका नाम बर यसु है उन्हें मिला। Bar Jesus means he's the son of a man that was named Jesus, not the Jesus that died on the cross, and his name is also Elymas. यहाँ पे जो नाम हम पढ़ते हैं कि बर यसु इसका ये मतलब नहीं है वो यसु जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर कुर्बान हुआ, बल्कि ये एक और शख्स है जो अपने आप को बर यसु कहता है या इसका नाम अगर दूसरे लफ्जों में ले तो अलमास भी है। There's also a proconsul named Sergius Paulus. He's a Gentile and he wants to hear the message that Saul and Barnabas are bringing. लेकिन ये कोई यहूदी नहीं है बल्कि गैर यहूदी है, लेकिन ये जो है वो साउल का बरनबास का कलाम सुनने के लिए वहां आया है। But Elymas not only does not want to hear the message himself, he is trying to prevent Sergius Paulus, who represents the Gentiles, from hearing the message. और ना सिर्फ ये उसका कलाम उसका सुनने आया है बल्कि ये गैर अक़वाम को भी जो है वो जाहिर करते हैं। And this is a metaphor of what's going to happen all the way through their mission trip, is that the Jews are going to try to prevent the Gentiles from hearing the message. और जितनी भी हम बरनबास की या साउल की खिदमत को देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि बरनबास और साउल जब खिदमत को कर रहे थे ना सिर्फ यहूदी बल्कि गैर अक़वाम के लोग भी उस कलाम को सुनने आते थे। Notice that Saul calls him a sorcerer and wicked, son of the devil, enemy of all righteousness, because he is keeping them from making the name of the Lord available to the Gentiles. और लेकिन यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि पौलुस उसे किस नाम से बुलाता है। वो कहता है कि तू शरीर का अबलीस का क्या है, फर्जंद है और तू मक्कार है। क्यों? क्योंकि नाम तो तूने अपना यसु रखा है लेकिन तू क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है। Because of his evil, he was blinded. That is, Saul caused him to be blind and in the dark for a period of time, just as the Jews will, because they prevent them from the Gentiles from hearing the message. और हम देखते हैं कि जब साउल ने से गुफ्तगू की है और उसे अपलीस का फर्जंद का शरीर का मकार का, उसके बाद क्या हुआ,
उसको उसको साउल ने कहा कि तू क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। और हम देखते हैं कि वो अंधा हो गया, जो कि इस बात को जाहिर करता था कि जो यहूदी यीशु पर ईमान नहीं लाते वो भी इसी की तरह क्या है, अंधे हुए। Now, notice in verse 9 that Saul's name is turned to Paul's name because Paul is more a Gentile name, where Saul is a Jewish name. अगर आप 9वीं आयत पे गौर करें तो वहां पर हम देखते हैं जो साउल है उसका जो नाम है उसका नाम अब बदल के पलूस हो चुका है, क्योंकि पलूस जो नाम है ये गैर अकवाम का नाम ज्यादा समझा जाता था, और जो साउल नाम है ये यहूदी नाम है। तो खुदा ने पलूस को तो वैसे ही गैर कौमों का नबी ठहराया था, जिसका नाम भी तब्दील किया गया। And because the Gentiles will be more open to the name of Paul than they would be to Saul, this is why he uses his Roman name versus his Jewish name. और जो आप देखते हैं कि उसका नाम की जो तब्दीली है उसकी वजह से जो गैर अक़वाम के लोगों ने उसे ज्यादा कबूल किया। क्यों? क्योंकि जो उसका नाम पहले था साउल था, वो एक यहूदी नाम था, और जो उसका नाम बाद में पड़ा है पलूस रसूल, वो एक रोमी नाम है। और लोगों ने उस नाम की वजह से और उसकी तालीमात की वजह से उसके लिए दरवाजे खोले, उसे कबूल किया। Now, because Paul was able to blind Elymas and preach a powerful message to Sergius Paulus, he believed in the message, and many were amazed at the Lord's teaching. और हम देखते हैं कि जब साउल ने जो है उस अलमास जादूगर को जो है वो अंधा कर दिया, और जब एक जबरदस्त कलाम की बनाती की तो उसके नतीजा क्या हुआ, एक सूबेदार इस सारे माजरे को देखकर क्या ले आया, ईमान ले आया। ना सिर्फ So, सूबेदार बल्कि बथेरे लोग उस पर ईमान लाए। so we can see from the map, he's gone from Antioch, Syria, over to this island of Salamis. And this is a metaphor of what happened right there, of what's going to happen to each city when they go there. और अगर आप देखें इस नक्शे को तो वो सीरिया से होता हुआ सलामून की इस इलाके में या शहर में गया, और हर इलाके में वो जब जाता तो खुदा के मनादी करता था। Saul's name changed in the narrative because now he has become God's chosen vessel to the Gentiles, represented by Sergius Paulus. ना सिर्फ उसका नाम तब्दील किया गया, बल्कि उसके नाम की तब्दीली ये भी थी कि खुदा ने उस साउल को अपने लिए चुन लिया है और इज्जत का बर्तन बनाया ताकि बदपेरों के लिए निजात की रोशनी को ला सके। Israel, like Elymas, is representing a satanic opposition to God's truth. और जो इज़राइल है वो रिप्रेजेंट करता अलमास जादूगर जो है वो इज़राइल को जाहिर करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि अलमास जो था वो जादूगर था और अपनी सी चीजों पर ईमान रखता था। और आज भी हम देखते हैं उस वक्त में भी यहूदियों ने खुदा की तालीमात से ज्यादा अपनी को ज्यादा दोस्त समझा। Paul told Elymas that his nature was evil, he was a child of the devil, and he was an enemy to all righteousness. और अलमास जो है वो अबलीस का फर्जंद है और मकारी से भरा हुआ है और झूठे काम करता है। इसी तरह हम देखते हैं जो खुदा को नहीं कबूल करते वो भी ऐसे ही हैं। This event validates that Paul is God's chosen vessel to get the ये message आपको out. जाहिर करवाता है कि पालूस को खुदा ने चुना है ताकि वो खिदमत के इस काम को पूरा कर सके। Let's turn back to Acts chapter 9, verses 15 and 16, please. आए मेरे साथ अमाल की किताब उसका 9वां बाब देखेंगे और उसकी 15 और 16 आयत के अंदर कुछ यूं लिखा है। मगर खुदावन ने उनसे कहा, जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं उसे जिता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। आमीन। Remember, Ananias said, God, are you sure you want me to go and heal this man? Because he is a Christian killer. याद रखें कि जब दमिश्क की राह में खुदावन पालूस पर जाहिर हुआ तो वो अंधा हो गया, और उसके बाद खुदा ने हनन्याह को कहा था
कि जा और उसके लिए क्या कर, दुआ कर। लेकिन जब हनन्याह ने क्या खुदा से कहा था, खुदावंद क्या तू चाहता है कि मैं उसके लिए दुआ करूं और वो ठीक हो जाए? वही तो मसीहों को कत्ल करता है। Jesus said, "No, he is my chosen vessel. He is the one who is going to bear my name before the Gentiles." लेकिन खुदा ने हनन्याह पर क्या जाहिर किया कि तू जा, क्योंकि वो मेरा चुना हुआ वसीला है जो कौमों पर मेरे नाम को क्या करेगा, जाहिर करेगा। He's going to bear my name before kings. और वो बादशाहों के सामने मेरे नाम को जाहिर करेगा। He's going to bear my name before the children of Israel. और वो इस्राएल के लोगों के दरमियान मेरे नाम को जाहिर करेगा। And he is going to suffer for me. और वो मेरी खातिर बहुत सा दुख उठाएगा। Now, notice that these all happen in the next two chapters we are going to be looking at. अभी जो हम ये बाप पढ़ रहे हैं, अगले दो बाप जो है, ये वाला बाप भी और अगला बाप भी, ये हमें हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से साउल जो है वो कौमों बादशाहों के दरमियान, इसराइल के दरमियान खुदा के नाम को जाहिर करता है और उस नाम की खातिर उसे कितना दुख उठाना पड़ेगा। Now, remember, not only did Luke want to show that Jesus was the legitimate Messiah and that he chose legitimate apostles, he's also wanting to show that Paul is a legitimate apostle of Jesus. याद रखिए, लूका तभी सिर्फ ये जाहिर नहीं करता अपनी इस किताबों के जरिए से कि मसीह यीशु हकीकी मसीहा है या उसने उन 12 को चुना तो वो हकीकी रसूल, बल्कि वो ये भी जाहिर करता है कि जो साउल है, जो पौलुस है, वो भी खुदा का हकीकी चुना हुआ वसीला और नबी है। Why is this important? Because Paul has written many books in the New Testament, and the Judaizers were saying he was not a legitimate apostle because he was not one of the original disciples with Jesus for 3 years on the earth. और हम देखते हैं कि ये क्यों जरूरी है इस बात को समझना कि जो पलूस है या साउल है वो चुना हुआ वसीला है, क्योंकि बाइबल अक़दस नए नामे की ज्यादातर किताबें पलूस ने लिखी हैं। लेकिन यहूदी क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्योंकि मसीह यीशु ने इसे चुना लिया है इसलिए ये रसूल नहीं। But remember, Jesus taught the message to Paul after he believed on the road to Damascus when Paul went to Arabia for 3 years. लेकिन हमें मालूम है कि यीशु मसीह खुद पौलुस को दमिश्क की राह में मिले और अपने आप को उस पर जाहिर किया, और 3 दिन तक जब वो अंधा था और उसने मसीह यीशु को ढूंढा, तलाश किया, फिर उसने जाकर क्या करना शुरू की थी, मनाती। Let's turn to Galatians chapter 1 आए मेरे साथ देखिएगा गलतियों की किताब and read verses 11 through 20, please. और उसका पहला बाब। हाँ जी, Galatians chapter 1, verses 11 through 20. ऐ भाइयों, मैं तुम्हें जिताए देता हूँ कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की थी नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशवा हुआ। चुनाचा यहूदी तरीक में जो पहले मेरा चाल चलन था तुम सुन चुके हो कि मैं खुदा कलीसिया को अजहद सताता और तबाह करता था, और मैं यहूदी तरीक में अपनी कौम के अक्सर हम उम्रों से बढ़ता जाता था और अपने बुजुर्गों की रवायतों में नहायत सरगर्म था। आमीन। आमीन। Okay, notice here that even though Paul wasn't for 3 years with Jesus on this earth, like James and John and Peter and Andrew and the other disciples, he got 3 years with Jesus after Jesus had been resurrected in Arabia. याद रखें कि जो पौलुस रसूल है वो बाकी रसूलों की तरह नहीं था, यानी याकूब और यूहन्ना और पतरस की तरह जिसने मसीह यीशु के साथ 3 साल गुजारे हों।
बल्कि ये वो रसूल है जो मसीह यीशु का जमीनी जो खिदमत थी वो जब खत्म कर चुके आसमान पर चले गए तो मसीह यीशु अरब के इलाका में इस पर जाहिर हुए. And we see that in chapter 13 and 14, it parallels chapters 1 through 4 when Peter is the leader. Now Paul is the leader. और हम अमाल की किताब को जब 13वें बाब को पढ़ रहे हैं तो जब हम देखते हैं कि मसीह यीशु के जाने के बाद खिदमत जो है उसको किसने शुरू किया था? पतरस ने. पहले दूसरे और तीसरे बाब में हम देखते हैं पतरस लीडर रहा, लेकिन 13वें बाब में हम देखते हैं एक नया लीडर उभरा है और वो कौन है? पालूस है. In chapter 1 through 2, we had the Holy Spirit fill the assembly before Peter would speak. And here we have the Holy Spirit filling in 13, 1 through 4, the assembly again. और हम देखते हैं कि पहली जो वो बाप है वहां पर खुदा का पाखरू उन्हें मिलता है. उसके बाद पतरस रसूल जो है खिदमत को करते हैं और 13वीं बाब में हम देखते हैं कि खुदा का रूह ही उन पर जाहिर हुआ और कहने लगा साउल और बरनबास को मेरे लिए अलग कर. अब नया लीडर कौन है? पौलुस रसूल है. Then we have signs of the fire in 2:5 through 13, and here Elymas is blinded. और फिर दूसरे अमाल के दूसरे बाब में हम कुछ निशानियां देखते हैं, जैसे खुदा के पाखरू का नजूल जो है वो आग की सूरत के अंदर हुआ था. After this, Peter gives a sermon, and after this, Paul is going to give a sermon. और इन सारे निशानियों के बाद पतरस रसूल क्या करता है? वास करता है. और 13वें बाब में हम देखते हैं इन सारी निशानियों के बाद कौन वास कर रहा है? पौलुस रसूल. After their sermons, many people are going to come to believe in Jesus for eternal life, and their life will be blessed. और फिर हम देखते हैं कि पतरस के वास के बाद बहुत सारे लोग ईमान लेके आए और इसी तरह पौलुस रसूल के वास के बाद भी बहुत सारे लोग ईमान लाए. In chapter 3, remember when the lame man was at the gate beautiful, he was healed by by Peter and John. They said, "Gold and silver we don't have, but in the name of Jesus you are healed." और अगर आप तीसरे बाब पे नजर चुराएं तो वहां पर हमने देखा था कि एक शख्स जो है यरूशलेम के खूबसूरत दरवाजे के बाहर जो है वो बैठा रहता है. क्यों? क्योंकि भीख मांगता है, मसूर है. और जब पतरस और यूहन्ना के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, जो कुछ है तुझे दिए देते हैं, यीशु के नाम से उठ और चला फिर. यानी मौजूदा हम देखते हैं. Now turn to Acts chapter 14 and read verses 8 through 10. आए 14वें बाब में अमाल 14वां बाब देखते हैं. 14वें बाब की 8 और 10 आए जहाँ कुछ यूं मरकूम है. और लिस्त्रा में एक शख्स बैठता था जो पांव से लाचार था. वो जन्म का लंगड़ा था और कभी ना चला था. वो पौलुस की बातें सुन रहा था और जब उसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने की लायक ईमान है तो बड़ी आवाज से कहा कि अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा. बस वो उछल कर चलने फिरने लगा. आमीन. Notice, just as Jesus told the man at the pool of Bethesda to arise and walk, as Paul told the man at the gate of Beautiful to arise and walk, now Paul has the same power through the Holy Spirit to heal people who are lame. और बिल्कुल ये उसी तरह है जिस तरह मसीह यीशु ने बैते हस्दा के पास उस लाचार और मफलूज आदमी को कहा था जो पानी का हिलने का इंतजार कर रहा था. यीशु ने कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर. उसी तरह पतरस ने भी उस मफलूज को जो खूबसूरत दरवाजे के पास रहता और लग रहा था, और पतरस ने उसको क्या कहा? सोना चांदी हमारे पास है नहीं, यीशु के नाम से उठ और चल. उसी कुदरत से, उसी पाक रूह के वसीला से आज पौलुस रसूल इस लाचार और लंगड़े को क्या कह रहे हैं? उठ, यीशु के नाम से चल फिर. आमीन. Luke is showing that Paul has the same apostolic authority
through the power of the Holy Spirit that Peter had. और यहाँ पर लुका तबीब जो है वो अपनी इस किताब के अंदर ये बताना चाहता है कि पतरस के पास भी वही कुदरत और कुवत है जिस वसीला से जो है पतरस जिस तरह से काम कर रहा था उसी तरह से जो है पौलुस भी अब काम करता है। Then we're going to see that God's truth is proclaimed just as it was by Peter, it's going to be proclaimed by Paul. जिस तरह पतरस रसूल मनादी करता था उसी तरह अब जो है पौलुस रसूल खुदा के कलाम की मनादी करता है। And just as Peter was thrown into prison in Acts chapter 4, they are going to threaten Paul in 4:19 and 20. हम देखते हैं कि जब खुदावन की कलाम की मुनादी पतरस रसूल कर रहा था तो माल की किताब का चौथा बाब हमें बताता है कि उस मुनादी के वसीला से उसे जेल में डाला गया। बिल्कुल उसी तरह जब पौलुस भी खिदमत कर रहा था मुनादी कर रहा था उसे भी कई दफा धमकाया और डराया गया। But both are going to escape through the power of the Holy Spirit because they are messengers of God. और लेकिन हम देखते हैं इन दोनों को खुदा ने बचाए रखा और खुदा ने इनकी हिफाजत की और खुदा ने इन्हें तैयारी दी ताकि वो खुदा के कलाम की मनादी को करते रहे। So what we see here is their ministries are very similar and actually parallel each other because they are fueled by the Holy Spirit. और हम देखते हैं कि इनकी जो खिदमत है वो कितनी ही मुश्तरका और एक जैसी है। क्यों? क्योंकि इनको चलाने वाला एक है और वो यीशु मसीह है। Now we're going to see something else. Let's turn to Galatians chapter 2, verses 11 through 16, where we're going to see Paul is actually going to correct Peter. आइए जरा हम कुछ और चीजों को देखते हैं। मेरे साथ देखिएगा गलतियों की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। So let's read लेकिन Galatians 2, 11 through 16. ओके लेकिन जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने रूबरू होकर उसकी मुखालफत की क्योंकि वो मलामत के लायक था, इसलिए कि यकूब की तरफ से चंद शख्सों के आने से पहले तो वो गैर कौम वालों के साथ खाया करता था, मगर जब वो आ गए तो मफ्तूनों से डर कर बाज रहा और किनारा किया, और बाकी यहूदियों ने भी उसके साथ होकर रियाकारी की, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके साथ रियाकारी में पड़ गया। जब मैंने देखा कि वो खुशखबरी की सच्चाई के मुआफिक सीधी चाल नहीं चलते तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू बावजूद यहूदी होने के गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है, ना कि यहूदियों की तरह, तू गैर कौमों को यहूदियों की तरह चलने पर क्यों मजबूर करता है? को हम पैदाइश से यहूदी हैं और गुनाहगार, गैर कौमों में से नहीं, तो भी ये जानकर के आदमी शरीयत के इमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्त बाज ठहरता है, खुद भी यीशु मसीह पर ईमान लाए ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्त बाज ठहरे, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्त ना ठहरेगा। आमीन। So here we see Peter, even after he has converted Cornelius, who is a Gentile, he is still fearing when he's around Jews not to follow all the Jewish laws and customs. हम देखते हैं पतरस रसूल जिसने खुद गैर अक़वाम कर्नेलियस से मुलाकात रखी लेकिन फिर भी वो यहूदी जो तालीमात थी उनसे मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकला था। This helps us to understand. Remember, Luke is writing this to Theophilus because Judaizers are saying it's not enough to believe in the message of Christ. If you don't follow all the Jewish laws, you're not going to see the kingdom of God. याद रखें कि ये हमारी मदद करेगी ये बाप या लुका की अंजील लुका तबीब की ये किताबें हमारी मदद करेगी कि हम इन बातों को समझ सकें
और लुका क्या बताना चाहता है कि यहूदी दस्तूर इस कदर जो ज्यादा है वो इतने काबिल नहीं है कि हमें खुदा से के करीब ला सके या खुदा की बादशाही तक पहुंचा सके। Here, Paul is telling of an event that happens to the Galatians. Remember, he's going to Antioch Pisidia, which is in Galatia. याद रखें कि पहले वो अंताकिया यानी जो उस इलाके में था वो गया था, यानी गलतियों के इस इलाके में भी वो मौजूद था, वो यहाँ की तमाम बातों को जानता था। Peter's eating with the Gentiles, but when the Jews come, he withdraws and won't eat with them because he's afraid of what they will say that he is mingling with uncircumcised people. और पतरस जो है वो पहले तो गैर यहूदियों के साथ उठता बैठता और खाता पीता था, लेकिन जब वहां पर यहूदी लोग आए तो वो उनसे डर के उनसे अलग हो गया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि शायद ये इसके बरखिलाफ कुछ बातें कहेंगे। Notice that Paul says even Barnabas was carried away in the hypocrisy because they all showed that they felt like Jewish customs were more important than the message of Christ. यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस रसूल बरनबास को भी तंबी करता नजर आता है, क्योंकि बरनबास ने रियाकारी की। रियाकारी का मतलब क्या है? जाहिरी कुछ और बातनी कुछ, और उस पैगाम को वो सही तरह से लोगों तक नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि उसने यहूदी तालीम और दस्तूर को ज्यादा अहमियत देना शुरू की। But Paul says, when I saw that Peter wasn't straightforward, saying that the message of Christ is more powerful, trumps all things, I met him face to face and told him he was wrong. और जब पौलुस ने देखा कि जो पतरस रसूल है वो डायरेक्टली लोगों से ये बात नहीं कर पा रहा है, तब पौलुस रसूल खड़े हुए और उसने डायरेक्टली लोगों से बात करना शुरू की और उसने उन्हें बताया कि यहूदी तलीमात से बेहतर और ज्यादा जरूरत खुदा के कलाम की मनादी और यीशु मसीह पर ईमान लाना। Now, remember earlier when Philip went to Samaria and he evangelized the Samaritans, Paul or Peter and John had to come up and lay hands on them for them to receive the Holy Spirit and legitimize this. याद रखिए कि जब फिलिप्पस जो है सामरिया के इलाके में मनादी कर रहा था, और सामरिया के इलाके में जब मनादी कर चुका लोग ईमान लाए तो उन्होंने रूह कुदस नहीं पाया था। तब यरूशलेम से दो लोगों को भेजा गया, और वो कौन थे? पतरस और यूहन्ना, ताकि वो सामरिया के लोगों तक पहुंचे और उन पर हाथ रखे ताकि वो रूह कुदस को पा सके। Now we have Paul, who was a killer of Christians, converted by Jesus and taught by Jesus, and now he is confronting Peter, who is the head of all the apostles. और अब हम देखते हैं कि वो शिगिर्द जो कि यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ और यीशु मसीह के जरिए से काम कर रहा है, अब उस शिगिर्द को कह रहा है जो मसीह यीशु के बाद बाकी शिगिर्दों की देख रेख करता रहा, यानी पतरस रसूल को। Paul confronted the most powerful apostle, Peter, in front of all the Jews. और हम देखते हैं कि जो पौलुस रसूल है वो तमाम लोगों के सामने, चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी, उनके लिए एक दिलेरी का बायस बना, लेकिन जो पतरस है वो यहूदियों के सामने ही बस। And his question is to Peter, if you, who are a Jew, live like the Gentiles, no longer restricted by the law, why are you persuading Gentiles to try to live as Jews do? और हम देखते हैं कि जो पौलुस रसूल है वो खुद तो एक यहूदी है, लेकिन उसका देख रेख जिंदगी गुजारने का जो तरीका कार है वो गैर यहूदियों की बात, Then he क्योंकि says, वो गैर यहूदियों के लिए नबी बनकर ठहरा है। even though we are Jews, we know we are not sinners like Gentiles. We do follow the laws, but we know the law justifies no one. It's faith in Christ that justifies. याद रखिए कि यहूदी जो कि क्योंकि यहूदी थे और गैर अक़वामों की तरह शायद उस तरह से गुनाह नहीं करते थे और खुदा से डरते थे, लेकिन तो भी बादशाहत में जाने के लिए या रास्तबाज ठहरने के लिए यहूदी कलिमात नहीं बल्कि यीशु पर ईमान लाना जरूरी।
And then Paul has to repeat this in his letter to the Galatians. Let's read Galatians chapter 3, verses 1 through 4. और इसीलिए जो पलूस है वो गलतियों के नाम खत लिखता हुआ उन्हें ये बात याद दिलाता है। मेरे साथ देखिए गलतियों की किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली 4 आयत। 3रा बाब और उसकी पहली 4 आयत हम पढ़ेंगे। ए नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसून कर लिया? तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया। मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूं कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से? क्या तुम ऐसे नादान हो के रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? आमीन। आमीन। So here we see mankind has a tendency to try to use religious rituals and rites to supersede the message of faith in Christ. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो इंसानी तौर तरीके हैं अब किस तरह से उन लोगों पर भी हावी हो गए हैं जिन्होंने रूह में शुरू किया था। Remember, when we went through the book of Romans, we saw that Paul said, "You were saved by the Holy Spirit. You will also walk by the Holy Spirit if you want to please God. Otherwise, you can't please God." अगर आपको याद हो तो जब रोमियो की किताब का हमने मुतालिया किया था तो वहां पलूस क्या कह रहा था, वो कि तुम रूह कुदस के वसीला से बच गए हो, लेकिन अब जरूरत क्या है कि रूह के वसीला से दुनिया में चलते रहो, क्योंकि जो कोई रूह के वसीला से दुनिया में चलता है वो खुदा को खुश करता है। So it is by faith we are justified through God, through the Holy Spirit, and it is by faith that we walk by the Holy Spirit to please the Lord. ये अब सवाल है, क्या हम ईमान के वसीला से यीशु पर ईमान लाने के वसीला से बच जाएंगे या पर रूह में चलने के वसीला से? So you can see that Paul has the same apostolic authority as Peter or John or any of the other apostles. याद रखिए कि पतरस के पास भी वही अख्तियार था जो बाकी रसूलों, शायद पतरस, यूहन्ना, याकूब या बाकी रसूलों के पास था। And he will be powerful in proclaiming it is faith alone in Christ alone that brings eternal life. और वो बड़ी दिलेरी के साथ खुदा के कलाम की मनादी करता है ताकि लोग हमेशा की जिंदगी के पैगाम को कबूल कर सकें। Let us pray. आए दुआ करें। Father God, we thank you for the book of Acts, and we see the transition that even though Christ died, he resurrected and he commissioned his apostles, including Paul, to share this message with the world. खुदान पाक, खुदाम तेरा शुक्र करते हैं हमारी किताब के लिए, खुदावन तेरे जमीन पर उतर आने के लिए और सलीब के ऊपर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए और उन रसूलों के लिए जिन्हें तूने चुना। और खास करके खुदावन हम ईमान रखते हैं कि खुदावन तूने पौलुस को भी चुना ताकि खुदावन तेरी खिदमती खुदावन इस काम के इस मिशन को पूरा कर सके। And now, through this word that they preached, we have had our eyes opened, and now we have the responsibility to proclaim this to a dark and blind world. खुदान पाक, खुदा इस कलाम के वसीला से आज खुदावन हमने जब सीखा तो फजल बख्श के हमारी आंखें खुली रहे और खुदावन इस अंधेरी दुनिया के अंदर तेरे कलाम की मुनादी खुदावन तेरे रसूलों की मदद कर सके। May we proclaim that no one can be saved by religious rituals or by legalism in religion itself, but that we must proclaim those who believe in Jesus for eternal life can live in the kingdom of God forever. खुदान पाक, खुदा फजल बख्श के हम लोगों को बता सके कि खुदावन देख उनके मजहब के वसीला से या उनकी अपने अमाल के वसीला से नजात नहीं, बल्कि नजात तेरे बेटे यीशु पर ईमान लाने के वसीला से, नजात तेरे पाक रूह के वसीला से अपनी जिंदगी गुजारने के वसीला से हम पा सकते हैं। We pray this in Jesus' name. Amen. यीशु
के नाम में ये दुआ करते हैं आमेन आमेन Thank you. God bless you. See you next week. God bless you. See you next week.